हमने बहुत दिन पहले कुछ नोट लिखा था, कुछ विचार आया था, तो वो लगता है आज इसमें लागू होगा थोड़ा सा। तो ये इंग्लिश में लिखा था हमने कि इफ़ वी लुक एट आवर सेल्व्स, look deep into our own eyes for a period of time in a mirror, we see our physical face, our body. However, if we continue looking deeper and deeper, we will find that there is something else besides this physical body. The physical body is what is we call the gross body. Literally, it is gross. Why? Because it produces all kind of dirty stuff, right? So it's a gross, but here gross doesn't mean that kind of gross. Gross means is rough, which we call sthul sharir, and it's made up of gross matter, sthul prapanch. Then there is what is called sukshma sharir, and that is made up of sukshma prapanch, finer matter, which we cannot see through our eyes, because our eyes can only see the gross matter. They cannot see the finer matter. Then there is pran, man, buddhi, chit, ahankar, and all these things which are inside of us. They are working 24/7 ceaselessly. The chit, our chetana, is called chetana, contains all the information that we accumulate throughout our lives. From the very beginning, from the very first day of creation, everything is accumulated in that chetana. It is the psyche or the consciousness that is involved in reincarnation. That's what I figured out. Reincarnation is to put together the physical matter, the gross matter, in the form of embodiment for the psyche. Okay? The consciousness which is within us is for that consciousness to play out. That is why this body is created. The psyche belongs to Jivatma. Each one of us has our own consciousness. Everybody's consciousness is different. Their contents are different. Your consciousness is different. Mine is different. Everybody is different. That's why we act differently. And the contents are different. So the gross body or the sthul sharir is temporary vehicle for the expression of our psyche for that time period. That's what it is. That is what reincarnation is. After this is done, another body is created for the next part of this consciousness to be expressed in samsara. Okay? So reincarnation is a very simple thing. Reincarnation is that of the body, not of the Atma or anything. It's only body reincarnates, becomes new, different body comes in there. Atma is same. And the consciousness is the same, it stays the same, its contents are the same. But from some contents are to be expressed in this time free period, so the body is given to express those contents. That's what you call karam phal. That's what it is. Very simple. But this will apply to what we are talking in Karam Yoga.
We must understand what the reality is actually. Okay? तो आज हम आरंभ करते हैं संसार की अनित्यता से। ये जो रीइंकार्नेशन की बात अभी हमने करी, तो ये शरीर अनित्य है कि नहीं है? ये चेंजेस। संसार भी क्या है? अनित्य है। संसार अनित्य इसलिए है क्योंकि एक चक्र, ये संसार का चक्र समय के अंदर चलता है। इट्स टाइम बाउंड। समय की परिवर्तनशीलता और म्यूटेबिलिटी, उसके कारण संसार भी परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है संसार। इसमें वर्तमान भूत बन जाता है, पास्ट बन जाता है, प्रेजेंट बिकम्स पास्ट, और भविष्य जो वर्तमान बन जाता है। अर्थात इनकी स्थिति अनित्य है। इट्स नॉट स्टेबल, इट्स अनित्य, इट्स नॉट इटर्नल। जीव जो है वो नित्य है, परंतु उसको कर्मों के कारण संसार में बार बार रिपीटेडली आना पड़ता है। कर्मों का प्रारंभ मन में आए हुए विचारों से होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। अज्ञानवश मन जब इंद्रियों से प्रभावित होता है तो उसमें विचार, थॉट्स पैदा होते हैं, है कि नहीं? इंद्रियों ने देखा, आंखों ने कुछ देखा, कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, और वो थॉट बन गया। चीज वही है, किसी को अच्छी लगती, किसी को बुरी लगती है। अपनी प्रेफरेंस कहाँ से आया? वो हमारी कॉन्शियसनेस में बना है प्रेफरेंस। दैट इज आवर कंटेंट, आवर कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड द प्रेफरेंस। तो जब ये होता है तो उसमें जो ये थॉट पैदा होते हैं और उनको लेकर प्रकृति के जो गुण हैं, देवता शक्तियों के द्वारा कर्म करने के लिए जीव को बाध्य करते हैं। कार्यते ह्यवशः कर्म, पढ़ चुके हैं इसको। जबरदस्ती प्रकृति के गुण जीव से कर्म करवाते हैं, बाध्य करते हैं, फोर्स देम टू डू इट। अब इसीलिए ज्ञान में क्या किया भगवान ने? क्या बताया है दूसरे अध्याय में? इंद्रिय संयम पर जोर दिया गया है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपना मन मुझको दे दो। कहा कि नहीं कहा? मन मना भव, मुझको दे दो अपना मन। जब तुम अपना मन ही मुझको दे दोगे तो मैं ये समस्या होगी ही नहीं। तभी तुम जो है इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पाओगे। तो जब हम बाह्य संसार, आउटसाइड वर्ल्ड के संपर्क स्थापित करते हैं, व्हेन वी मेक कांटेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, तो हमारा मन उस बाह्य संसार की ओर आकर्षित हो जाता है। ये क्वालिटी है संसार, बाह्य संसार की, आकर्षित करती है। फूलों के अंदर रंग होते हैं कि नहीं होते हैं? रंग बिरंगे फूल, तितलियां उड़ रही हैं, हम देखते हैं उसको तो हमारा मन उसके ऊपर आकृष्ट होता है कि नहीं होता है? हम कहते हैं हाँ, हो सकता है ये फूल हम अपने बैकयार्ड में भी लगा लें, पेड़, है कि नहीं? ये आकर्षण है। इस कारण हमारे कर्म सांसारिक कर्म हो जाते हैं जो देवताओं की ओर हमको ले जाते हैं। संसार के जो भी कर्म हैं ये सब देवता कर्म हैं, ये फंसाते हैं सब। दूसरी ओर जब हम अपना मन ईश्वर की ओर लगाते हैं, वो तो बहुत रेयर होता है, समय ही नहीं मिलता लगाने के लिए। मनमना भव की स्थिति में उसको लगाते, मन को लगाते हैं, तो हमारा संबंध ईश्वर से बनता है कि नहीं? एक तरफ बाह्य संसार है
जो हमको आंखों से दिखाई दे रहा है, ग्रोस मैटर है, देख रहे हैं उसको, और दूसरी तरफ ईश्वर जो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उससे अपना नाता जोड़ सकते हैं ज्ञान के थ्रू। तो संबंध जो ईश्वर से बनता है, यहाँ कितना बड़ा अंतर है। एक और देवता शक्ति जो जीव से केवल कर्म करवाती है, बाध्य करती है, फोर्स देम टू डू कर्म, जिससे वो बने, और उसको कर्म के फलों का संपादन करती है, वो फल देती है देवता। और दूसरी ओर ईश्वर जो जीव को ज्ञान देकर उससे ऊर्ध्व होने की क्रिया करवाते हैं। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कराया, और जीव को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो हमारा हितैषी कौन है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं कर्मयोग। अगर गीता में कोई समझने वाला अध्याय है तो वो है कर्मयोग। संसार में जो कुछ भी किया जाता है वो कर्म कहलाता है। सिद्धांत में प्रत्येक क्रिया का परिणाम होता है, और उसे हम कर्म की गति कहें या कर्म का फल कहें, परिणाम ही होता है। ये कर्म का ये सिद्धांत जीव पर ही लगता है, देवताओं पर नहीं लगता है। देवता कर्म नहीं करते हैं, जिससे उसको कर्म फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। देवता तो संसार में अपना काम करने के लिए आते हैं, उसे संसार से कुछ लेना देना नहीं, ना हमसे आपसे कुछ लेना देना नहीं, उसको तो अपना काम करना है। उसे कोई दुख नहीं होता है, कोई मर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को कष्ट हो रहा हो, कष्ट हो रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फल देने के लिए आता है देवता यहाँ। ओके, चाहे जैसा भी फल है, जैसा कर्म किया वैसा फल देगा वो देवता। हम कहते हैं बड़ा बुरा फल दिया, लेकिन देवता डजंट केयर, वो तो उसका काम है, वो काम करने आते हैं। वो क्या है, उनको नित्य बद्धा कहा गया। दे आर इटर्नली बाउंड टू डू दैट, दैट्स देयर जॉब। वो टस से मस नहीं हो सकते हैं। अगर वो इधर उधर होने लगे तो सूर्य ठीक टाइम पे नहीं निकलेगा, दिन रात बदल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, काम ही नहीं चलेगा संसार का, ब्रह्मांड का काम रुक जाएगा, खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए देवता बिल्कुल नित्यबद्ध है, बिल्कुल लाइक ए क्लॉक वर्क, डज जॉब सपोज टू डू, नो इमोशंस। और ईश्वर जो है वो नित्य आनंद में रहते हैं, वो उनका अपना आनंद उसी में ही आनंद मग्न रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अध्याय 4 के 14वें श्लोक में कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा, मतलब स्पृहा कहते हैं क्रेविंग और लॉन्गिंग नहीं है। आई डोंट लॉन्ग फॉर कर्म फल। अब यहाँ कितने लोग हैं जो कर्म फल के लिए लॉन्गिंग नहीं करते हैं? कर्म करते इसीलिए कुछ फल मिलेगा हमको, है कि नहीं? दुनिया के अंदर सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं नमामि कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मुझको कर्म, मेरी कर्म के फलों में कोई स्पृहा, लॉन्गिंग, क्रेविंग नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। उनके अंदर पावर ही नहीं लिप्त करने की। लिप्त तभी करेंगे जब हमारे अंदर क्रेविंग होगी इसके पाने की। जैसे कि यहाँ पर आते नहीं कि ऐड आते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, ये है वो है, दुनिया भर का निकालते ना, ये खरीदो तो वहाँ ट्रिप में यू कैन विन ट्रिप टू दिस एंड दैट। ये क्या है? यू गो देयर बिकॉज यू वांट टू विन समथिंग, राइट? मुफ्त में मिल जाएगा,
ये मुफ्त में नहीं मिलने वाला है, वो आपसे दो कदम आगे हैं। तो ये भगवान कहते हैं जब तक कर्म के अंदर तुम्हारी लॉन्गिंग होगी, फल की लॉन्गिंग होगी, क्रेविंग होगी, तब तक तुम फंसोगे इसके अंदर, बच नहीं सकते हो। और इतना ही नहीं, आगे भगवान इसी श्लोक में कहते हैं इतिमा यो भी जानाति कर्म न कर्म भिर्न सब बध्यते। जो मुझको, वो देखो उन्होंने एक बार पहले पार्ट में उन्होंने समस्या बता दी, अब उसी श्लोक के दूसरे भाग में उसका समाधान बता रहे हैं। कहते हैं जो मुझको इस प्रकार तत्व से जान लेता है, किस प्रकार कि हमको कर्म की लॉन्गिंग नहीं, फल की लॉन्गिंग नहीं है, इसलिए हमको कर्म बांध नहीं पाते हैं, इसको तत्व से जान लेता है, वो भी कर्मों से नहीं बंधता है, वो अपने को बचा सकता है। अर्थात वो भी आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या भगवान ने क्या कहा? कर्म करो, वो तो तुम्हारा धर्म है, तुमको करना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्टे विदाउट डूइंग कर्म इवन फॉर अ मोमेंट। लेकिन कैसे करो, ये कला सीखो, ये कर्मयोग की कला सीखो कि फल की तरफ मत अपने को देखो। जहां फल की तरफ पकड़े गए वो देवता दबोच लेगी तुमको, बस बांध दे जाओगे। यू कैन नॉट एस्केप। देवता वेरी पावरफुल। लेकिन हमने पिछले 5वें श्लोक में हम पढ़ा है कि नहीं कश्चिति क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र, इवन फॉर अ मोमेंट, बिना कर्म किए नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर गुण। सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा परवश हुआ। परवश जानते हैं? हाँ, वो बाध्य है, बंधा हुआ है, उसके कोई चॉइस नहीं है। जैसे कि स्लेव होते हैं ना, लाइक ए स्लेव, गुणों के द्वारा परवश, गुण के स्लेव बन जाता वो। कर्म करने के लिए बाध्य, ही इज ओब्लाइज्ड, ही इज फोर्स्ड टू डू द कर्म। आप इस बात को से सहमत होंगे कि इतनी भयानक स्थिति जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, ये भयानक स्थिति है कि नहीं है? इसे समझना हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। हमको समझना पड़ेगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए क्या उपाय है। अब ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, संस्कृत में गुण कहते हैं रस्सी को। रस्सी के लिए भी गुण शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और 3 स्ट्रैंड वाली, 3 लड़ों की रस्सी बहुत मजबूत रस्सी होती है। तो देवता क्या है? त्रिगुणात्मक हैं, 3 गुणों वाली हैं देवता सब। अब इन्होंने ये 3 गुणों वाली देवता ने अपना जाल फैला रखा चारों तरफ, हर ब्रह्मांड के अंदर। ये 15वें अध्याय के अंदर हम उसको विस्तार से देखेंगे। और ये 3 गुणों की रस्सी जो है इतनी मजबूत है, यू कैन नॉट क्रॉस, यू कैन नॉट ब्रेक लूज फ्रॉम इट। छुड़ा ही नहीं सकते अपने को। कितना भयंकर हिसाब है। तो ये प्रकृति गुण जो हैं देवता के थ्रू जीवों को बांध लेते हैं, फल का लालच देते हैं, गए फंसे, बंध गए। इसे समझने के लिए हमको जीव की स्थिति को समझना होगा। जीव जो है वो 2 स्थितियों में ही रह सकता है। जीव तो इटर्नल है, नित्य है।
निर्गुण है, लेकिन वो 3 गुणों में फंस जाता है क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। लेकिन ये 2 स्थिति में रह सकता है, या तो वो जीव माया के अधीन रहेगा, माया भी त्रिगुणात्मक है 3 गुणों वाली, या फिर प्रपंच के अधीन रहेगा। जैसा हमने आज शुरू में पढ़ा कि जो स्थूल प्रपंच ग्रोस बॉडी जो है और सूक्ष्म प्रपंच इसके अधीन रहता है जीव। तो 2 के बीच में और कहीं उसके लिए रहने की कोई जगह नहीं है, या तो प्रपंच में रहेगा या फिर माया के स्वरूप में रहेगा। और प्रलय जब संसार में रहता है तो वो शरीर में रहता है, शरीर के अधीन तो हैं हम ना। अगर शरीर नहीं तो हम कैसे रहेंगे? हम सभी जीव जो हैं शरीर के अधीन रहते हैं, अधीन है इसके। कुछ दर्द होने लगे, चल नहीं पाए तो क्या मुसीबत हो जाती है कि नहीं? ये अधीनता है कि नहीं है? बिल्कुल डिपेंडेंट ऑन दिस बॉडी विच इज मेड आउट ऑफ प्रपंच। उसके अंदर प्रॉब्लम होती हैं, सब होता है, डॉक्टर के पास जाओ, ये करो, लेकिन इसलिए हम इसके अधीन हैं। और जब प्रलय हो जाती है, सब खत्म, ये प्रपंच खत्म हो जाता है, तब जीव माया के अधीन हो जाता है, माया में चला जाता है। तो वहां भी 3 गुण हैं। 3 गुण पैदा वहीं से हुए हैं, माया से तो पैदा हुए हैं। इनके बीच में जीव की कोई भी स्थिति नहीं है। ये दोनों स्थितियां त्रिगुणात्मक हैं। ये तीनों गुण प्रकृति से अर्थात माया से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत में हमने अभी बताया कि गुण रस्सी को कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमको पूरी तरह से बांधे रहते हैं। और कार्यते ह्यवशः कर्म, जैसे कि किसी के गले में पट्टा बांध दो, कहो ये काम करो, ये खाओ, वो करेगा, वो है कि नहीं? वैसे ये गुण ये बांधते हैं, देवता बांधे रहती है। हम आपको पहले बता चुके हैं, उपनिषद के अंदर ये ऋषि कहता है कि जितने भी जीव हैं ये, इनको देवता कैसे समझती है? देवता कहती है कि हमारे ये सब पशु हैं। जैसे कि मनुष्य के पास घोड़े होते हैं, गाय होती है, बकरी होती है, सब होते हैं ना, उनको और भेड़ होती है, उनसे ऊन लेते हैं। उनके लिए वो पशु हैं जो उनके काम में आते हैं, और पशु उनके अधीन रहते हैं, मनुष्य के अधीन रहते हैं। उसी तरह से ये मनुष्य जो है वो देवताओं को अधीन जस्ट लाइक पशु रहता है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल रहता है वो। फिर भी मनुष्य क्या करता है? देवताओं की जय जयकार करने के निकलता है, जय हो जय हो। पता नहीं उसको क्या हो रहा है। समस्या तो ये है। ये कैसे होता है? कर्म तभी होते हैं जब जीव प्रापंचिक शरीर में व्यक्त होता है। इस स्थिति में इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी कार्य करते हैं। अगर कोई पागल मनुष्य है जिसका माइंड नहीं काम कर रहा है, वो कर्म नहीं कर सकता है, उसको कर्म का कोई भी लेप नहीं लगेगा। कर्म उसी का लगता है जिसका मन पूरी तरह से डेवलप्ड है, वो काम कर सकता है। तो देखिए जीव कितनी तरह से बंधा हुआ है, लेकिन जिसकी इंद्रियां काम नहीं करती उसको कोई कर्म नहीं लगते हैं। अब देखते हैं कि जीव को बाध्य करके कर्म कैसे करवाए जाते हैं। जीव मतलब हम स्थूल प्रपंच के इस शरीर में स्थित इंद्रियों के द्वारा जड़ चेतन प्रकृति के अनुभव लेते रहते हैं। उसके स्वभाव के अनुसार, हम सबका स्वभाव अलग अलग है कि नहीं है? जैसा हमारा स्वभाव वैसे ही हम बाहर देखते हैं, इंटरप्रिटेशन वैसे ही करते हैं। उसके मन में किसी एक अनुभव के प्रति रुचि या अरुचि व्यक्त हो जाती है। हमको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, यही तो द्वंद्व है ना।
गुड और बैड ये द्वंद्व हैं, जिससे उसके मन में इस क्रिया के प्रति विचार बनते हैं। अब हमारा चित्त किसी और अनुभव लेने के लिए चला गया, क्योंकि अनुभव तो बहुत होते रहते हैं ना। तो पहले हमारे मन चित्त ने अनुभव लिया किसी चीज का और उसका विचार बन गया। अब हम आगे बढ़ गए, किसी और चीज, किसी और चित्र को देख रहे हैं, हमारा मन उधर उधर चला गया और हम इसको पहले वाले को भूल गए। लेकिन ये पहला विचार जो है वो कहीं गया नहीं है, वो रजिस्टर हो गया हमारे अंदर। ये हमारी चेतना कॉन्शसनेस में मानसिक कर्म के रूप में संचित मतलब स्टोर हो जाता है। मन से हुआ, मानसिक कर्म बन गया, स्टोर हो गया, हम तो भूल गए। जिस गुण के अंतर्गत ये विचार वर्गीकृत मतलब क्लासिफाई किया जाता है, उस गुण की किसी देवता को माया ये मानसिक कर्म सौंप देती है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? क्लियर? हाँ, रियली नो? जो देवता है 3 गुणों वाली होती है। अगर सतोगुणी देवता है और रजोगुणी और तमोगुणी 3 तरह की देवता हुई ना, आपने कोई सीन देखा, आपने उस पर रिएक्ट किया, आपका कैसा रिएक्शन हुआ, वो किस गुण में रिएक्शन क्लासिफाई होगा। कोई भी रिएक्शन हो, हर गुण में किसी ना किसी एक गुण में क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब जिस गुण में वो क्लासिफाई हुआ, उस गुण की कोई देवता, उस युग की देवता, उस गुण की कोई देवता, उसको ओनरशिप उसको दे दी गई और उसका मानसिक कर्म बन गया वो। अब समझे आप? नहीं समझे? अभी भी नहीं समझ गए? ये इंपॉर्टेंट बात समझने की है। इस तरह से मानसिक कर्म बनते हैं। और अब माया का अंश जो जीव के साथ लगा हुआ है, माया ने अपना एक क्या बोल डिकॉय लगा रखा हमारे साथ। वो हमारी तरह लगता है देखने में बिल्कुल। वो जो है समय समय पर जीव को भड़काता रहता है, इंस्टिगेट करता है। अरे देखो, तुमने ये सोचा था करने के लिए, ये टाइम आ गया, करो इसको, उठो करो। और उस कर्म को क्रम से वाचिक बनाता है और फिर शारीरिक बनाता है। समझ रहे हैं? मानसिक हमने बना लिया, गलती तो हमने करी ना, देखा मानसिक बन गया, अब वो स्टोर हो गया, वो पकड़ लिया गया। अब वो जिस देवता के अधीन उसको असाइन कर दिया गया, वो देवता जो है वो उसको वाचिक बना देगी और उसको फिर क्रम से शारीरिक बना करके लेप लगा देगी, तेरा ये कर्म बन गया, अभी तो उसको भोग नहीं पड़ेगा, जब टर्न आएगा तो तुझको भोगना पड़ेगा। इस प्रकार जीव कर्म बंधनों में बनता जाता है, एक के बाद एक बनते जाते हैं। हमको पता ही नहीं लगता है क्या हो रहा है, बनते जाते हैं। कितने जन्म हमारे हुए हैं हमको नहीं पता है, कितने कर्म किए हमने हमको नहीं पता, कैसे कर्म किए हमको नहीं पता, सब में बंधे हुए हैं। इसलिए अध्याय 7 श्लोक 14 में भगवान बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कह दिया, दैवी योषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अब देखो, यहाँ भी पहले उन्होंने समस्या बताई, पहले श्लोक के पार्ट में, और श्लोक के दूसरे पार्ट में उसका उन्होंने समाधान बताया है। समझिए इसको। कहते भगवान कहते हैं क्योंकि ये दैवी अर्थात ये बहुत अद्भुत, दैवी मतलब डिवाइन,
अद्भुत मेरी त्रिगुणमयी माया, ये माया ईश्वर की शक्ति है, प्राइमोर्डियल पावर है, बड़ी दुस्तर है, मतलब डिफिकल्ट टू ओवरकम. यू कैन नॉट ओवरकम दिस पावर ऑफ माइंड. इट्स वेरी डिफिकल्ट. यू कैन नॉट, देयर इज नो वे यू कैन गेट अक्रॉस इट. ये क्या 3 गुणों की रस्सी वाली है ना, ये सब चक्कर बंधे हुए हैं. ये तो जीव को कर्म करने के लिए बाध्य, ऑब्लिगेट करती है. और श्लोक के अगले भाग में भगवान ने इससे बचने का उपाय भी उन्होंने बता दिया. पहले तो उन्होंने बताया कि यार कितनी माया कितनी दुस्तर है, कितनी दुष्ट है कि तुम उससे बच नहीं सकते हो. लेकिन आगे उन्होंने बताया कैसे बचने का उपाय बताया. क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कि परंतु अर्जुन ये माम ए प्रपद्यन्ते, जो पुरुष मुझको ही निरंतर, ये नहीं है कि आज कह लिया कल भूल गए, निरंतर भजते हैं. दोज हु आर माई डिवोटी, कांस्टेंट डिवोटी, मेरी शरण में आ जाते हैं. ते एताम मायाम तरंती, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, पार कर जाते हैं. अर्थात संसार को पार कर जाते हैं. पार करने का उपाय बता दिया उन्होंने कि तुम मेरी शरण में आ जाओ और मेरी ही भक्ति करो. क्योंकि ये माया किसकी है? माया तो मेरी है. भगवान कहते हैं मेरे कंट्रोल में है ये, और किसी कंट्रोल में ये माया नहीं है. तो वो माया किसकी बात सुनेगी? जो उसका मालिक है. तभी तो भगवान कृष्ण का एक नाम है माधव. माया का जो धव मतलब पति है, वो सधवा बोलते हैं ना. एक विधवा होता है, एक सधवा होता है. तो धव में क्या है? साधव, वो पति के संग है. इसी तरह से माया जो है वो क्या है? ईश्वर की शक्ति है. इसलिए वो उनको माधव कहा गया है. ओके. तो संसार को पार कर जाते हैं वो लोग जो हमारा निरंतर जाप करते हैं, हमको याद करते हैं, हर काम में हमको लगा लेते हैं, आगे लगाते हैं, साथ रखते हैं. यही तो कर्मयोग है, और कुछ थोड़ा ही है. वेरी सिंपल. जैसा भगवान ने 4 के श्लोक 14 में कहा कि इस प्रकार इस क्रिया से ये लोग मुझको तत्व से जान लेते हैं. जो लोग मुझको तत्व से जान लेते हैं, किस क्रिया, किस बात से? कि ये नमामि कर्मामि लिम्पन्ते, नमे कर्म फले स्पृहा. इसको जान लेते हैं तत्व से कि इस प्रकार इस क्रिया से लोग मुझको तत्व से अगर जान लेते हैं और वे कर्मों से नहीं बनते हैं, वो नहीं बनते हैं कर्म, उनको पता है. अर्थात वे भी आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं. तो कर्म के बंधन से बचने का, आवागमन से मुक्ति पाने का केवल एक ही उपाय है. यह है ईश्वर की शरण में जाकर उसकी अनन्य भक्ति. आज आपने देखा ऐसा, इसका रीजन क्या है? माया बांधती है, और माया किसकी शक्ति है? ईश्वर की. तो ईश्वर कंट्रोल करता माया को. तो जो ईश्वर का भक्त बन गया, माया उसको कुछ नहीं करेगी. माया उसकी सहायता करेगी. चल भाई, ये तो हमारे मालिक का आदमी है. इससे इस जीवन के सब कार्य शांति पूर्वक पूरे होंगे और आगे मोक्ष मार्ग भी निश्चित हो जाता है.
ये कर्मयोग की विशेषता है। भक्ति योग भी कर्मयोग के अंतर्गत ही आता है। अब हम अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयत अनेन, हमने पढ़ा कि सह यज्ञा प्रजा षष्ट्वा पुरोवाक प्रजापति, कि जब षष्ठी रची गई तो यज्ञ के सहित रची गई। तो यहाँ पर क्या है, देवान भाव्यता अनेन, इस यज्ञ के द्वारा, इस पूजा, इस धार्मिक दृष्टि के द्वारा, इन चतुर्युग धर्मों के द्वारा क्या क्या रचा गया, उसमें हमने देखा हर युग के धर्म रचे गए। 4 युग बने, हर युग का धर्म अलग होता है। जो सतयुग है उसका धर्म अलग है, वो अपने अंदर ही बैठे बैठे, ना उनको भूख न प्यास, बैठे रहते हैं चुपचाप और अंदर ही अपने अंदर देखते रहते हैं अपने इष्ट को, और उसी में उसका मन जाप करते करते 1 लाख वर्ष तक रहते हैं ऐसे। और जो त्रेता युग में भक्ति है धर्म, आज भक्ति धर्म नहीं है, भक्ति जो है त्रेता युग का धर्म था, जब राम की भक्ति लक्ष्मण ने करी, विष्णु की भक्ति प्रहलाद ने करी, समझ रहे हैं आप। द्वापर युग के अंदर यज्ञ धर्म था, 100 यज्ञ करके इंद्र तक पहुंच जाता था। आज कोई स्वर्ग नहीं पहुंचता है, ये सब कहने की बातें हैं, हेवन चले जाएंगे, अरे वाह गुड लक। आज हेवन कोई नहीं जाता है। तो और कलयुग जो है, इस युग के जो धर्म है वो है तीर्थ, क्षेत्र, व्रत, दान। आजकल लोग क्या करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं कि नहीं जाते, साल में 1 बार। तीर्थ वो जगह होती है जहाँ पानी होता, वो स्थान जहाँ पानी है, नदी के किनारे, जैसे विश्वनाथ मंदिर है, नदी गंगा किनारे है। और क्षेत्र वो होता है जो जहाँ पानी नहीं है, वैष्णो देवी वहाँ पानी नहीं है कि नहीं, पहाड़ों पर है, वो क्षेत्र है। और कलयुग के अंदर व्रत करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं, मान्यता मानते हैं, व्रत करते हैं और दान भी देते हैं। जब कहीं जाते हैं तो वहाँ दान देते हैं कि नहीं देते हैं। ये कलयुग का धर्म है। आज के युग में कोई यज्ञ नहीं कर सकता, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, और फल तो मिलेगा लेकिन वो यज्ञ जो सोच रहे हैं उसका फल मिलेगा वो नहीं होने वाला। स्वर्ग नहीं जा सकते हैं आप, और भक्ति भी नहीं कर सकते ठीक से, जैसे कि प्रहलाद ने करी, वो भी नहीं है। भक्ति होगी लेकिन उसका फल अलग है। वो कलयुग में करोगे भक्ति लेकिन उसका फल अलग है। तो भगवान कहते हैं कि इन चतुर्युग धर्मों के द्वारा, ये चारों युग के धर्म जो हैं, देवताओं को तुम क्या करो, उन्नत करो, उनकी वाहवाही करो, उनको उन्नत करो, अपने से ऊंचा करो, उनकी आराधना करो, उनको पूजो, उन्हें प्रसन्न करो, उनको खुश करो, मेक हिम हैप्पी विद योर एक्शन, उनकी संभावना करो। यहाँ देवान किसके लिए कहा गया, देवता। कौन सी देवता, माया से लेकर के यक्षिणी तक सब देवताओं के लिए कहा गया। इन देवताओं को तुम, क्योंकि 4 युग में अलग अलग देवताओं की पूजा होती है, इसलिए यहाँ भगवान ने कहा देवान, देवताओं की तुम यज्ञ रूप में पूजा करो।
यहाँ चतुर्युग धर्म का उल्लेख आया है। इसका निर्माण सृष्टि रचना के साथ ही हुआ है। जब सृष्टि रची गई तो ये चारों युग के धर्म बनाए गए, इनकी विद्याएं बनाई गई, सब देवताओं की मूर्तियां बनाई गई जो ब्रह्मांड में हैं। जैसे कि लो ये सन आप देख रहे हो, सन की जहाँ सूर्य देख रहे हैं वो सूर्य देवता नहीं है, वो तो सूर्य है, उसमें शक्ति सूर्य देवता की है। लेकिन सूर्य देवता तो वहाँ बैठी कहीं और स्वर्ग में बैठी हुई है। वो देवता इटसेल्फ वो स्वर्ग में है, उसकी शक्ति से सूर्य काम कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये मत समझना कि चंद्रमा देखा चंद्रमा देवता की पूजा कर रहे हैं आप, नहीं। तो सतयुग के देवता चैतन्य देवता है। चैतन्य मतलब माया, और वहाँ का धर्म है आत्मोपास्ति, अपने अंदर ही माया को देखना, उसको पूजना। फिर त्रेता का है, युग का धर्म है भक्ति। ये भी हम बता चुके हैं आपको। द्वापर में जो धर्म है वो, उसमें 100 यज्ञ करो द्वापर युग में तो स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं पहुंच जाओगे वहाँ पर, टिकट मिल जाएगा वहाँ जाने का। अगर वो खाली जगह नहीं है तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि स्वर्ग में एक ही जगह है इंद्र की एक ही इंद्र है, तो एक ही जगह एक ही जीव जा सकता है वहाँ पे एक बार में। अगर कोई बैठा हुआ है तो वेट करना पड़ेगा, कहीं और भेज दिया जाएगा, फिर टर्न पता नहीं कब टर्न आए। ये देवताओं के भक्ति का फल है। और अंत में कलयुग, जहाँ धर्म एक कली, जैसे कि कमल का फूल खिलता ना सुबह और शाम को क्या होता है, बंद हो जाता है, कली की तरह बंद हो जाता है, कली रूप में फिर चला जाता है। इसलिए इसको कलियुग कहा गया है। कली की तरह धर्म इसके अंदर बंद हो जाता है, बंद हो गया है, धर्म है ही नहीं, अधर्म भड़ा पड़ा है। तभी तो दुनिया भर में अधर्म के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मार काट ये वो सब ये हो रहा है आजकल। और यहाँ की देवता भी, इस युग की देवता भी बहुत ही हिंसा वाली देवता है। जो पैदा होते हैं यहाँ हिंसा बहुत होती है, यहाँ पर बिना मतलब ही मार रहे हैं लोगों को। तो इस तरह से आज जो है न विष्णु है, न शिव है, न दुर्गा है, न राम है, न लक्ष्मण है, कोई नहीं आज। अगर इनके नाम से कोई पूजा करता है तो इस युग की कोई देवता उस नाम को लेकर के पूजा को स्वीकार कर लेती है। कोई मत समझना कि त्रेता युग के राम आ रहे हैं वो पूजा स्वीकार करने के लिए, फॉरगेट इट। वो त्रेता युग में थे, ये कलयुग है। त्रेता युग का राम तो इतना ऊंचा था, कलयुग के अंदर क्यों आएगा वो? कलयुग के अंदर तो मार काट होती है। उसने तो राज्य छोड़ दिया, क्योंकि कैकेयी ने कहा, ये पिता की ये उनकी ये बूंद थी उसको, कैकेयी को उसने कहा ये करना है, तो वो मान के चला गया। वो तो बहुत ऊंचा था। आज के ज़माने में कोई करेगा? कोई तो तलवार लेके आके गला काटने के तैयार हो जाएंगे आज तो ये आज कोई सोचे कि रामलला के वहाँ जा कर के हम पूजा करें तो राम की पूजा हो रही है। राम की पूजा नहीं, वहाँ कोई कलयुग की देवता बैठी उस पूजा को स्वीकार करती है। पूजा कलयुग की देवता ही की हो रही है, चाहे कहीं भी करो इस युग में। इसलिए युग धर्म बनाए गए थे शुरू में सृष्टि की रचना में। ते देवा भावयन्तु वे देवता, तुम ऐसा करोगे तो वे देवता तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। देवताओं का काम ये है, जो उनकी पूजा करो तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे वो। जैसा कि भी आपको बताया, देवता जो है जीव को डोमेस्टिकेटेड एनिमल की तरह रखती ना। अगर वो एनिमल ठीक से बिहेव करता है अच्छी तरह से, तो उसको वो उसकी मालिक जो है उसको अच्छा खाना देते कि नहीं देते हैं? उसकी ग्रूमिंग करेंगे उसकी, राइट? उसी तरह से
भगवान कहते हैं तुम देवताओं को ऐसे उन्नत करो, उनकी पूजा करो, सब करो, देवता तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। बस इतना ही है, मुक्ति नहीं, इच्छा पूरी करेंगे। परस्परम भावयंत, इस प्रकार एक दूसरे को दूसरे की कार्य पूर्ति करते हुए परस्पर भाव, तुम उनकी पूजा करो, वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। परस्पर भाव है ना। परस्पर को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग, राइट, करस्पॉन्डेंट। श्रेय परम व्याप्स, धीरे धीरे तुम उन्नति को प्राप्त करोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे तुम। अर्थात संसार में मनुष्य का मुख्य कार्य उन्नति का कार्य है। ऊपर बढ़ने के लिए भगवान ने भेजा यहाँ पर, ये नीचे जाने के लिए नहीं भेजा है। सृष्टि की रचना इसीलिए हुई कि हम ऊपर बढ़ें, ऊपर उठाएं अपने को। जीव को संसार में आने पर पहले ही सब मार्ग बताए गए कि ये ऊपर जाने का मार्ग है, नीचे जाने का मार्ग, इधर जाओगे तो नीचे जाओगे, उधर जाओगे तो ऊपर जाओगे। जब सृष्टि रची गई तभी ईश्वर ने एक मालेकार की तरह सबको बता दिया कि भाई ये इधर, ये रास्ता इधर ले जाएगा, ये रास्ता उधर ले जाएगा। चॉइस तुम्हारी है। परमात्मा किसी को बंधन में नहीं डालते हैं कि ये करो, वो नहीं कहते ये करो। अर्जुन को कहा, क्योंकि अर्जुन क्या था? शिष्य बन गया था उनका, और अर्जुन ने पूछा कि मेरे लिए श्रेय कर क्या है, तब बताया भगवान ने। हाँ? समझ रहे हैं आप? वैसे नहीं बताते हैं भगवान किसी को, वो दोनों रास्ते बता देते हैं। तुम ये करो, तो ये चॉइस तुम्हारी है, फ्रीडम है। नहीं, अगर फ्रीडम नहीं तो बंधन हो गया। और भगवान बांधते नहीं किसी को, वो तो जीव को मुक्त करने के लिए आते हैं, तो बांधेंगे क्यों? तो भगवान कहते हैं अपनी आत्मा को तुम रजोगुण में डालकर नुकसान करोगे, और दूसरे प्रकार से तुमको ऐसी सिद्धि होगी कि इस मार्ग से तुम सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। इसके बारे में हम भी पढ़ जाए हैं, पहले पीछे पढ़ चुके हैं इसको। तो ये क्रिया इस क्रिया द्वारा तुम देव भक्ति करोगे तो वो तुम्हारा भला करेंगे और तुम धीरे धीरे ऊपर पहुंचोगे। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता है। लेकिन जीव के कर्म गुणों से होते हैं। प्रकृति के 3 गुण उससे कर्म करवाते हैं, हम पढ़ चुके हैं अभी। जिस दिन से हम पैदा होते हैं उसी दिन से हमारी प्रकृति काम करने लगती है, नॉन स्टॉप। प्रकृति के इन 3 गुणों के अधीन हम कर्म करते हैं। हम उसके अधीन होकर के संसार में आते हैं, हमको लाया गया, और उसके अधीन होकर हम कर्म करते हैं, मानो चाहे ना मानो। लोग कहेंगे ना हम कैसे, हम तो खुद करते हैं हम काम। ठीक है भाई, मान लो, अहंकार काम बोल रहा है आपका। ज्ञान होने पर मनुष्य कर्मों की छानबीन करता है कि भाई मैंने क्या किया, और आगे हो सकता है कि वो अपना सुधार कर ले। ज्ञान का ये लाभ है कि अपने को सुधार सकता है आदमी, लेकिन वो सुधार करना बहुत ही कठिन काम है। बड़े से बड़े ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के वश में ही रहते हैं। कितना बड़ा ज्ञानी फिर भी प्रकृति के वश में। जैसे ऋषि दुर्वासा बहुत बड़े ज्ञानी थे, बात बात पर शाप दे देते थे, उनकी प्रकृति ऐसी थी, शाप दे देते थे। वे थे तो बड़े ज्ञानी, लेकिन उनकी प्रकृति ही ऐसी थी। ये ठीक है कि हम ज्ञान से धीरे धीरे अपनी प्रकृति में अंतर ला सकते हैं, परंतु हम स्वयं उनसे अलग नहीं हो सकते हैं, अपने को अलग नहीं कर सकते हैं। अब लीजिए वशिष्ठ। वशिष्ठ कौन थे? राम के गुरु थे, कुल गुरु थे। वे सदा शांत रहते थे, वो ब्रह्मर्षि थे। विश्वामित्र ने बहुत प्रयत्न किए कि जिससे वशिष्ठ को क्रोध आ जाए, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी थी। तो श्लोक 11 में कहा कि इस यज्ञ या पूजा के द्वारा तुम देवताओं की भावना करो
और वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगे और यज्ञ कर्म के द्वारा हमारी अर्थात ईश्वर की पूजा से हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान कहते हैं अगर तुम हमारी पूजा करोगे यज्ञ रूप में तो हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। देवताओं करो तो देवता हम तुमको मन वांछित फल देंगे, लेकिन अगर तुम हमारी पूजा करोगे यज्ञ रूप में तो हम तुम्हारा कल्याण के मतलब मुक्ति की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार परस्पर भाव से मनुष्य को कल्याण, श्रेय और परम वापस उत्तम, परम अति, परम गति, द अल्टीमेट स्टेट मिलती है। गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जहां परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, और कहीं नहीं कहा गया है, कहते मेरी पूजा करो। भगवान कृष्ण ने 3 जगह कहा है, 2 बार अध्याय 9 में, श्लोक 25 और 14 और 34 में, और फिर अध्याय 18 श्लोक 65 में कहा है। भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान प्रत्ययान्ति प्रतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्य जिनो पिमाम। कहते हैं कि जो देवताओं को पूजता है, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं को, जो पितरों को पूजता है वो पितरों को, जो भूतों को पूजता है वो भूतों को, और जो मुझको पूजता है वो मुझे मिलता है। साफ साफ कह दिया यहाँ पर। और मुझे मिलने वाला जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान ने क्या कहा आगे, कहते मन मना भव मद भक्तो माध्याजी माम नमस्कुरु। कहते अर्थात अर्जुन तू मेरी भावना कर, मेरा भक्त बन जा। अगर पूजा करना है तो मेरी ही पूजा कर, मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके, फिक्सिंग योर माइंड इन मी, यहाँ आत्मा माइंड के लिए कहा गया है, मन मना भव। तो आत्मा कई जगह हर एक तरह तरह की चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पर आत्मा कहा गया माइंड के लिए। फिक्स योर माइंड इन मी एंड मी अलोन, मेरे परायण होकर फुल्ली डिवोटेड एंड अटैच्ड टू मी। ये नहीं कि थोड़ा सा, फुल्ली कंप्लीटली डिवोटेड एंड अटैच्ड टू मी, तो मुझको ही प्राप्त होगा, यू विल कम टू मी। और अंत में भगवान कहते हैं इसी संदर्भ में, हे अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला बन और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। मैं तुझसे ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। अब बताइए इससे ज्यादा क्या कह सकता कोई है? प्रतिज्ञा कर दी अर्जुन को, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। यहां मैं शब्द जो यूज किया वो ईश्वर के लिए कहा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैं ईश्वर हूं, मुझको ईश्वर समझ। इतना कहकर भगवान अर्जुन को कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि अर्जुन तू संपूर्ण धर्म अर्थात कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर। जो भी कुछ तेरा धर्म है, जो भी तेरा कर्तव्य है, कर्म है, उसको मुझ में त्याग दे, मतलब मेरी शरण में आ जा। तू केवल एक मेरी सर्वशक्ति परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। शोक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, भगवान ने प्रॉमिस कर दिया उसको। तो गीता के अलावा किसी और ग्रंथ में, किसी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है। इसी को लेकर भगवान ने श्लोक 11 में कहा देवान भाव यतानेन
देवान भाव्यत अनेन, इस प्रकार यज्ञ के द्वारा किए कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं, क्योंकि ये ईश्वर के नाम से किए जाते हैं। तो ईश्वर के नाम से कोई भी क्रिया करो वो बंधन नहीं कर सकती है, उससे तुम मुक्ति मिलती है। और भगवान कहते हैं कि जब मैंने संसार बनाया था तभी कहा था कि मैं तुमको ऐसे ही कर्म करने के लिए संसार में भेज रहा हूँ, ऐसे कर्म से तुमको बंधन नहीं लगेंगे। भगवान कभी नहीं कहेंगे कि ऐसे कर्म करो इससे तुम बंध जाओ। परंतु मनुष्य ने इन यज्ञ कर्मों को छोड़ दिया और दूसरे कर्म करना शुरू कर दिए और अपने को बंधनों में डाल लिया। इसी का परिणाम है कि आज मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह संसार में आता है। आज मनुष्य है तो क्या कल हो सकता है अगले जन्म में कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, कोई पता नहीं, इसको क्या पता आगे क्या बनना है। आगे जो कर्म आएगा वो बनना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा शुरू में कि जो कॉन्शसनेस के अंदर ही जो क्रम से हमारे कर्म बने हुए हैं उसी तरह से हमको वो शरीर दिया जाता है, फिर वो इनकारनेशन होता है। कोई ज़रूरी थोड़ी मनुष्य बन के आओगे, जो कर्म आएगा उसका शरीर दिया जाएगा, वो भोग भुगतने के लिए आओगे। आज कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं जो यज्ञ रूप से कर्म करते हैं, बहुत कम है। ऐसे मनुष्यों पर ईश्वर की कृपा होती है। इस सब में ईश्वर की इच्छा है। क्यों कृपा होती? क्योंकि यज्ञ रूप कर्म में भगवान की इच्छा है। उन्होंने कहा यज्ञ रूप करो कर्म, तो भगवान ने कहा इस प्रकार तुम देव की श्रद्धा करो और वे तुम्हारी भावना करें तो तुम्हारा कल्याण होगा। जब भगवान यही नहीं रुके। श्लोक 12 में भगवान कहते हैं इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञ भावितः देवा, उस यज्ञ, कौन सा यज्ञ? जो युग धर्म आदि साधन के द्वारा पूजे हुए देवता जो हैं। ये नहीं कि आप त्रेता युग में सतयुग का धर्म कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सतयुग धर्म करने के लिए 1,00,000 वर्ष की आयु चाहिए। त्रेता में कितनी आयु है? 10,000 साल की। अब भक्ति करना है त्रेता युग की तो द्वापर नहीं कर सकते, क्योंकि द्वापर के अंदर 1,000 साल की आयु होती है, चाहिए 10,000 साल की आयु। समझ रहे हैं? अब कलयुग के अंदर स्वर्ग जाने की यज्ञ नहीं कर सकते, उसके लिए 1,000 साल की आयु चाहिए। यहाँ 100 से ऊपर आयु होती नहीं। समझ गए? इसलिए हर युग का जो धर्म है वो इसी हिसाब से बना हुआ है, उसी हिसाब से आयु मिलती है। क्यों? क्योंकि विकार बढ़ता जाता मनुष्य के अंदर और विकार से आयु कम होती जाती है। जितना ही विकार बढ़ेगा उतनी आयु कम होगी। ये देवता तुम लोगों की इच्छित भोग देते रहेंगे। संसार में जो कुछ हमको मिलता है उसमें परमेश्वर और देवताओं की इच्छा है। अगर देवता दे रही तो देवता की इच्छा है, परमेश्वर दे रहा तो परमेश्वर की इच्छा है। बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ हमारे कर्म इस जन्म के हैं और कुछ पिछले जन्मों के भी हैं, उनको हम नहीं जानते हैं। तो उन देवों के जो कर्म और भक्ति हमने करी उनसे संसार में हमको सब मिला। जो कुछ मिलता है देवता दे रही है हमको सब। हम समझते हैं मैंने ये कर लिया। अरे भाई तुम कहाँ, तुम्हारे पास है, तुम क्या कर सकते हो? अपनी दवा भी नहीं कर सकते हो, बुखार आ जाए डॉक्टर के पास भागते हो, तो क्या कर सकते हो?
हम में से जिन्होंने अधिक करा उनको अधिक, और जिन्होंने कम करा उनको कम मिला। आगे भगवान कहते हैं यह एभ्य, परंतु जो पुरुष तैर दत्तान, उन देवों के दिए हुए भोगों को, तो समझ रहे हैं, देवताओं ने, आपने कुछ क्रिया उनकी करी, उन्होंने आपको कुछ दिया। अब यहाँ भगवान कहते हैं उन देवों के दिए हुए भोगों को, जो उन्होंने भोगने के लिए दिया, एंजॉय करने के लिए दिया, एभ्य अप्रदाय भुंजते, उनको बिना दिए स्वयं भोगता है। अर्थात पहली क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं पहले जिसने तुमको दिया है ये फल, उसको पहले अर्पित करके उसके प्रसाद रूप में लो तुम उसको। कायदा तो यही है, लेकिन उसको इग्नोर करके वो अपना भोग ले लेते हैं उसको दिए बिना। अर्थात इंद्रियार्थ भोगता है। सस्तेन एव, उसको भगवान कहते हैं ये चोर है और कुछ नहीं, ये चोर है, इसने चोरी करी है। उसको देवता प्रत्यवाय आज नरक देती है। अगर देवता ने कुछ दिया तो प्रोसेस, ये कायदा ही कहता है उसको अर्पित करो, क्योंकि देवता को चाहिए नहीं, वो तो तुमको दे दिया उसने, लेकिन उसको अर्पित तो करो, एक्नॉलेज तो करो कि भाई तुमने हमको दिया है, ये आपको हम दे रहे हैं। तो देवता तो नहीं लेगी ना, वो फिर वापस प्रसाद के रूप में, देवता का प्रसाद के रूप में तुमको मिलेगा, उससे तुमको लाभ होगा। जो ये नहीं करता है, भगवान कहते हैं वो चोर है। ये वेदों में भी आया। तो जीवन में हमको जो कुछ भी मिला उसे हम उस देव को, यहाँ देव शब्द के मतलब ईश्वर और देवता दोनों को देव कहते हैं। देव वो है जो देता है, को देकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो क्रिया क्या होती है? यज्ञ रूप क्रिया हो जाती है। बगैर उसके किए क्रिया यज्ञ रूप नहीं होती है। आप समझे? इसीलिए भगवान कहते हैं ये चोर है जो ऐसा नहीं करता है। क्यों? कायदा कहता है वो तो देवता ने तुमको दिया है, तो थोड़ा उसको भी तो दो पहले तुम। इसलिए जिन लोगों को यहाँ इस जन्म में अच्छे भोग मिल रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, पैसा है, यश है, मौज से रह रहे हैं, परंतु वे दान धर्म नहीं करते हैं, वो दान नहीं देते हैं, वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि परमात्मा ने हमको दिया है, देवता ने हमको दिया है, तो वे पिछले जन्म का बासी भोग तो भोग रहे हैं। पिछले जन्म का भोग क्या है? बासी भोग है कि नहीं? स्टेल। परंतु वे अगले जन्म की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। अगला भी जन्म भी तो होना है, ये जन्म खत्म होगा उसके बाद अगला जन्म भी तो होगा, उसकी भी तो तैयारी करो, आगे क्या मिलने वाला है। अभी जो मिला वो तो पिछले जन्म का मिला है, अब क्या कर रहे हो जो अगले जन्म में मिलेगा। उसके पास पाथेय कुछ नहीं है। पाथेय बोलते हैं जब यात्रा में जाते हैं तो संग में कुछ शिडोरी लेके जाते हैं, खाना लेके चलते हैं, वो कुछ नहीं उसके पास, भूखा रहेगा वो। परंतु कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि आगे भी जन्म होना है हमारा, जिसके लिए इस जन्म में ईश्वर के लिए वो कुछ कार्य करते हैं और इससे अगले जन्म में उनको इस जन्म से दुगना मिलता है। समझ रहे हैं आप? जितना ही नहीं, जितना किया उससे भी ज्यादा मिलता है। इसे कहते हैं कर्णव। ये ईश्वर की प्रसन्नता है। अब कर्णव के लिए आजकल कहते हैं टिप होती है। जब कहीं रेस्टोरेंट में खाने जाओ को, तो वहाँ पर जो सर्व करते हैं वो बड़ा अच्छी तरह सर्व करते हैं, बड़ा आपको खुश कर देते हैं। आप खुश हो गए, यू गिव बिगर टिप, डोंट यू? राइट? ये कर्णव है, आप खुश होकर उसको दे रहे हैं।
इसी तरह से जो ईश्वर के लिए कुछ कार्य इस जन्म में करेगा उसको ईश्वर प्रसन्न होकर के और ज़्यादा देते हैं। जितना उसको मिलना है ये उससे और ज़्यादा देते हैं। वेद भी कहता है कि जो उन लोगों को अर्पण न करे हुए फल भोगता है, उन लोगों के मतलब देवताओं जिन्होंने दिया है, उनको अर्पण किए बगैर जो फल भोगता है वो चोर है। ये वेद भी कह रहा है। इसलिए ईशावास उपनिषद में कहा, ईशावास इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ शुद्ध कश्चित सिद्धिनो, कि ये दृश्यमान सब और जो जगत है ये सब ईश्वर से आच्छादित है। ईशावास, इसमें ईश्वर का वास है, उस ईश्वर में विद्यमान है, उस ईश्वर के अंदर है ये सब। वे उपासक तू, हे उपासक तू क्या कर, उस त्याग से अर्थात परमात्मा को देकर पदार्थों को भोग, जो यहाँ तुम भोगो वो उस परमात्मा को अर्पित करके तब भोगो। सब भोग ईश्वर की देन है, ऐसा जान। अपने आप आपने काम किया, अब सक्सेस हो गई। लोग सोचते हैं हमारे एफर्ट से हो गया ये। अरे तुम्हारे एफर्ट से क्या, तुम्हारे पीछे शक्ति तो देवता दे रही थी ना, वो जो ईश्वर की शक्तियाँ वो काम कर रही हैं। उन्होंने तुमसे काम कराया, उन्होंने तुमको स्मार्ट बनाया, नहीं तो सभी स्मार्ट हो जाते दुनिया के अंदर, है कि नहीं। तो देवता शक्ति है, वो फल मिला, उसको एक्नॉलेज करके इस तरह से दान देकर तब करो। सब भोग ईश्वर की देन है, ऐसा जान, लालच मत कर। ये उपनिषद कह रहा है। किसका धन है? सब पदार्थ परमेश्वर के हैं, जो भी कुछ है सब परमेश्वर का है। ऋग्वेद के दशम मंडल में भी सूक्त 117 में ऋषि अंगिरस कहते हैं, परमात्मा ने मौत केवल गरीबों को ही नहीं दी है। लोग कहते हैं गरीब भूख से मर जाता है, क्योंकि गरीब खाना न खाने से मरता है। लेकिन वो कहते हैं कि अमीर भी मरता है, लेकिन वो अधिक खा के मरता है। ये ऋषि कह रहा है। जो दूसरों को नहीं देता है उसका जीवन व्यर्थ है। ये दान के ऊपर कहा गया है। वो मनुष्य सही भोजन करता है, अर्थात जिससे उसे तृप्ति होती। सही भोजन क्या होता है? जिससे तृप्ति होती है, आत्मा को, मन को तृप्ति होती है, उसमें परिवर्तन होता है, जो उसमें से पहले दान देता है। दान देने के बाद जो भोजन करता है वो तृप्ति देता है, वो सही भोजन है। ये व्यक्ति इस संसार में किसी का मित्र नहीं जो अपने लोगों को नहीं देता है। वो किसी का मित्र नहीं जो किसी को देता नहीं है। आजकल तो कोई घर में आ जाए, कहते हैं क्या मुसीबत आ गई तो और फिर कहेंगे अतिथि देव भव, है कि नहीं कितना इंटरेस्टिंग है। उसका घर नहीं वो घर उसका घर नहीं कहलाता है। वो एक प्रकार से मृत्यु है, वो डेथ चेम्बर है। ये वेद कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, ऋषि कहता है, कि उसका अन्न खाना भी व्यर्थ है। जो ऐसा काम करता है उसका अन्न मत खाओ, उससे तुम्हारी कोई पुष्टि नहीं होगी। केवल अपने आप जो चुपचाप खा लेता है, मानो वो अपने पाप को खाता है। इस विषय पर गीता क्या कहती है, इसे अगले श्लोक में लेते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो
मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शिष्टाशन, इस प्रकार प्रमाणोक्त, प्रमाणोक्त मतलब जो प्रमाणोक्त पात्र, वो पात्र जो प्रमाण के हिसाब से पात्र है, ये नहीं कोई पात्र ऐसा वैसा ले आए, जो प्रमाण के हिसाब से जो पात्र है उसके प्रति यज्ञ से बचे हुए, अर्थात उस यज्ञ के उच्छिष्ट अर्थात बचे हुए अन्न को प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करने वाले, अर्थात क्रिया जिसे यज्ञ रूप से किया गया, जिसमें पहले अतिथि को और सभी को खिलाकर फिर उस अन्न को पति पत्नी खाते हैं, उससे क्या होगा? अब यहाँ समझना ये है, प्रमाणोक्त पात्र, ये शास्त्र के प्रमाण में जो पात्र है, शास्त्र में प्रमाण के हिसाब से जो पात्र है, उसकी पूजा करो यज्ञ में, उसको खिलाओ, और उसको खिलाने के बाद, क्योंकि वो पात्र है, किसी को खिलाने से पहले उसकी पात्रता ढूंढना चाहिए, कितना बड़ा पात्र है वो। ऐसे कोई अंधे लूले को नहीं खिलाना है। जो ज्ञानी पुरुष वो पात्र है, उसको खिलाओ, उससे लाभ होगा। तो कहते हैं इसको ऐसे किए हुए पात्र को वो खा ले, जब भोजन कर ले, और जो अतिथि आए हैं यज्ञ में वो खा लें, उसके बाद जो बचे खाना, अन्न जो बचे, उसको पति पत्नी तब उसको खाएं। ये नहीं कि उनके संगी बैठे खाने लगे ना, उनको खिलाओ, विधि पूर्वक करो सब काम, और फिर बाद में उसको कैसे खाओ कि ये प्रसाद है, उस यज्ञ का प्रसाद है, उसमें उनकी प्रसन्नता है। प्रसाद का मतलब प्रसन्नता। संत, वे संत लोग जिन्होंने ये यज्ञ रूपी क्रिया करी, ऐसा जो लोग करते हैं उनको ये कह रहे हैं भगवान वो संत हैं। मुंचते सर्व किल विषय, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे संत लोग सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये उस अन्न को प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करने का प्रभाव है, हैं? कोई आपने कहीं खाना यज्ञ रूप क्रिया करी, उसके बाद जो खाना बचा उसमें से अपने को लिया प्रसाद के रूप में, तो उससे क्या हुआ? प्रसाद बुद्धि उसमें हुई आपकी, तो इसका प्रभाव पड़ता है। उससे क्या होता है? पापों से मुक्त हो जाते हैं। करते जाओ, थोड़ी देर पाप खत्म होते जाएंगे, और खत्म होते जाएंगे, और करो और खत्म होंगे। ये क्या कहते हैं भगवान? ये पापी जन, ये पापः भवन्ति आत्म कारणात्, ये पापी जन जो अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, ऐसे स्वनिष्ठ के मतलब अपनी में निष्ठा रखते हुए अपने लिए करते, हेतु खाने वाले तो तेतु अधम भुंजते, वे दुराचारी अधम तो पाप को ही खाते हैं। ये गीता कह रही है, क्योंकि ये क्रिया इंद्रियार्थ होती, वो अपने इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए खा रहे हैं, स्वाद के लिए खा रहे हैं, पेट भरने के लिए खा रहे हैं। इसमें हिंसा होती है। क्यों हिंसा होती है? जो खाना पकाया उसमें हिंसा होती कि नहीं होती? कीड़े कीटाणु मरते हैं। तो जब उसको यज्ञ रूप में खिलाया किसी पात्र को, और उसको प्रसाद रूप में बाद में खाया, तो हिंसा तो जिसको खिलाया उसके पल्ले चली गई। जो पहले खाता है ना, वो हिंसा उसके पल्ले में चली जाती है।
ये नहीं पता था आपको। इसीलिए पात्र को ढूंढो, क्योंकि हिंसा उसके पल्ले चली गई लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो पात्र है, उसके अंदर पावर उसको डाइजेस्ट करने की, वो जो हिंसा है उसको खत्म कर देगा वो। ये बहुत ऊंची बात है। ये इंद्रियार्थ होती है, अदरवाइज जो नहीं करते हैं वो इंद्रियार्थ करते हैं। इंद्रियार्थ क्रिया में क्या होता है? पाप पैदा होते हैं, उससे पाप पैदा होते हैं। तो यहाँ जोर है स्वयं बनाकर दूसरों को खिलाकर तब खाओ। ये नहीं कि आजकल तो बना बनाया ले आए बाजार से और खा लिया, ये हिसाब है आजकल तो ना। तो धर्म तो गया बाय बिकॉज वे साइड, धर्म इज गॉन। इसका अर्थ ये है कि हम जीवन में भोग के जो साधन जुटाते हैं उनमें से किसी को दिए बिना उनको भोगने वाला मनुष्य एक प्रकार से पापी ही है, वो पाप खाता है। इस विषय में गीता का यह श्लोक और वेद का मंत्र अर्थ दोनों में बराबर है, और ये कहते हैं कि थोड़ा सा देना बहुत जरूरी है, मस्ट गिव समथिंग। सबसे बड़ा दान है अन्नदान, और वो भी किसको? जो पात्र हो उसको दो। इसलिए जो अन्न पकाना है या जो धन संग्रह करना है उसमें से दान उपकार सत्कार आवश्यक है, अन्यथा उसका लाभ नहीं होता है। तो हमने बल दिया किस पर? तेन त्यक्तेन भुंजी था। और कलयुग में ये अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कलयुग में, क्योंकि दान धर्म के बिना जीना बहुत ही कठिन है इस कलयुग के अंदर। हम पीछे युग धर्म में पढ़ा है कि दान कलयुग के धर्म मतलब तीर्थ क्षेत्र व्रत दान के अंदर एक अभिन्न भाग है उसका, इस युग का। इस पर उपनिषद की एक कथा है। पुराने काल में सभी गुरु के पास शिक्षा लेने जाते थे गुरुकुल में। शिक्षा पूरी होने पर गुरु उनको उपदेश देता था। इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक में आता है। गुरु शिष्य को उपदेश देता है, क्या कहता है? सत्यम वद, सच बोलो, जो बोलो सच बोलो। धर्मम चर, अपने धर्म पर चलो। स्वाध्याय प्रभवानाभ्यम न प्रमादित्वम, कि प्रमाद मत करो स्वाध्याय में। मातृदेव भव, पहले कौन आया? माता आई, मातृदेव भव। पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। इसमें और भी उपदेश हैं, इनको कहते हैं अनुशासनम। अनुशासनम कथा ऐसे है कि देवता मनुष्य और असुर ये तीनों गुरु से शिक्षा लेने के लिए गए। कौन? देवता, मनुष्य और असुर। ये तीन ही तरह के तो लोग होते हैं संसार के अंदर, हैं? देवता की तरह लोग होते हैं, या फिर मनुष्य की तरह होते हैं, या असुर होते हैं, आसुरी प्रकृति के होते हैं। दैवी प्रकृति आसुरी प्रकृति पढ़ी ना गीता में। तपस्या करी और प्रजापति के पास गए और कहा कि हमारे चलने का समय आ गया है गुरुजी, तो आप हमको उपदेश दें। तो सबसे पहले देवता आए, तो प्रजापति ने उसको उपदेश दिया द एक शब्द, एक अक्षर का, और वे चुप हो गए। फिर उन्होंने देवताओं से पूछा, उपदेश समझ में आया? वे बोले हाँ, आ गया। तो क्या समझे? देवता बोले दमध्वम, मतलब
हमको अपनी इंद्रियों का दमन करना है, क्योंकि देवता स्वर्ग में तो इंद्रियों बहुत उनका सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। अप्सराएं नाचती, सब होता रहता है कि गाना बजाना होता है कि नहीं होता है, सुरा पीते हैं। तो वहाँ क्या है, उन्होंने कहा हमारे लिए दा का मतलब है इंद्रियों का दमन करें, उनको रोकें। तो क्योंकि देवता भोग विलास में फंसे हुए थे। फिर असुर गए, उनको भी यही उपदेश दिया, द और पूछा भाई समझ गए तुम? वे बोले हाँ हम समझ गए, दमध्वम, कि लोगों पर दया करो, दयध्वम, कि उनको शिक्षा दी गई कि तुम असुर हो, तुम मारकाट करोगे, लेकिन लोगों पर दया करो थोड़ी सी। अंत में मनुष्य गए, उनको भी वही उपदेश दिया गया, द। और पूछा क्या समझे भाई? वे बोले दातव्यम, अर्थात लालच मत करो, दान दो, ये उपदेश हम समझे। अब इसको थोड़ा बदल देते हैं। एक शब्द है भूचर। चर कहते हैं चलना, भू मतलब भूमि, जो भूमि पे चलता है वो भूचर कहलाता है, अर्थात मनुष्य। तो एक है मनुष्य, और एक शब्द है भूसुर, पृथ्वी की देवता। सुर मतलब देवता, तो पृथ्वी के देवता ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण के लिए उपदेश हुआ कि अपनी इंद्रियों का दमन करो, तपस्या करो। ब्राह्मणों को तपस्या करना पड़ता, तप करो। असुरों के स्थान पर आ गए क्षत्रिय लोग, वो मारकाट करते हैं कि नहीं करते हैं? उनको कहा गया दया करो, नॉन डिस्क्रिमिनेट मारकाट ना करो, जो जिसको मारना उसी को मारो, सबको मत मारो। तुमको ये विद्या आ गई मार काट की, ये मतलब नहीं सबको जाके तुम मारने लगो, दया करो। और तीसरे हुए वैश्य, ये पैसा जोड़ जोड़ कर रखते हैं और बाहर से गरीब दिखते हैं। उनके लिए कहा गया दान दो, गिव समथिंग। ये तीनों हर मनुष्य पर लागू होते हैं, क्योंकि हर मनुष्य को तप, समाज की रक्षा और दान, ये तीनों करना चाहिए। ये हर एक के ऊपर लागू, तभी उसका जीवन सार्थ होगा। इतना आज बहुत है। अगले 2 श्लोकों में भगवान इस यज्ञ रूपी क्रिया की प्रतिकारणता बताते हैं। प्रतिकारणता का मतलब ये आगे कहाँ ले जाते हैं, इनसे क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो फिर अगली बार देखते हैं। जय श्री कृष्ण।